Okay, so hi everybody. Now we are going to deal with, in this video, we are going to deal with Index 23 borrowings. And this standard is, as much as short the standard is, too much is the complications related to that standard in the practical life. Okay, so this standard, though it is too short, but we are going to deal with some practical aspects of it which creates an issue or where you generally face some issue. For example, how much forex cost needs to be capitalized, when it needs to be capitalized, whether it could be capitalized inventory or not, running, inventory, running terms. So whether it should be done or not. Okay. So Index 23, in general, if you just go through the overview of this standard, you're going to note that this standard says it defines actually only two terms, borrowing cost and the qualifying asset. Okay. Now, what is a borrowing cost and what is qualifying asset? Now, borrowing cost in general, okay, what these two terms in general means. So, borrowing cost means what? What can be capitalized? आप क्या capitalize कर सकते हो? That is what the standard speaks. One is saying. Okay, number one is this. Second thing that it speaks about is that what can be capitalized, then on what you can capitalize. ठीक है, तो आप किसके ऊपर इसको कैपिटलाइज कर सकते हो. This is the second thing, and what you can capitalize is this qualifying asset. Okay, so this is the qualifying asset on what you can capitalize, and what can be capitalized, other costs. Now if we just go through it, then what does it says? Borrowing costs are interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. Simple. Interest and other costs. Now, in detail, we are going to speak of it. What is interest? What are those other costs that could be capitalized? Then a qualifying asset. What is a qualifying asset? A qualifying asset is an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. Okay, so these three terms only are there. Substantial period, time to get ready, and for its intended use. Now, in general, if you just read this definition, what you can get through is substantial period मतलब कम से कम एक साल तो ले रही होगी. Okay, that's substantial period. And time to get ready मतलब उसे तैयार होने में तो समय लगना चाहिए. It should not be ready for use. Whenever it is purchased instantly, जैसे हमने खर्चा किया, it should not be ready for use. It should take time to get ready. Okay, for its intended use or sale. Intended मतलब जो हमने सोचा था उस यूज के लिए वो काम आए या सेल के लिए काम आए. मतलब आपको सेल से समझ आ रहा है, यूज या सेल. यूज मतलब योर पीपीई, it will be forming part of what, your PPE. एंड व्हाट इज सेल? सेल मीन्स आप इन्वेंट्री ट्रेड करो उसके अंदर. तो दोनों की ही कैपिटलाइजेशन की क्या करता है ये इंडेक्स, बात करेगा. सो इंटेंडेड यूज या फिर सेल टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम. नाउ इसके ऊपर जो जनरल क्वेरी आती है वो क्या आ जाती है? वी गो थ्रू इट, क्लियर इट, or will it be visible? Okay, let's clear this. What can be capitalized and all? Okay. So, is there a rule for determining the substantial period of time? As I said, हम लोग बोल रहे हैं 1 year. Is 1 year okay? मतलब should be like that. तो कोई rule नहीं है इंडेक्स 23 में. It does not define substantial period of time. Okay, to be very clear, this is what issue is that standards cannot be dealt with as it is. You have to form some or the other form of you have to understand it in some form. So you cannot just directly go by this. एक होता है एग्जाम फॉर्म के लिए पढ़ना, एक होता है फिर उसे अप्लाई करने के लिए पढ़ना. सो व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ इज फॉर द एप्लीकेशन पोर्शन. क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या, जैसे आप स्टैंडर्ड को अप्लाई करने की बात करते हैं, जैसे आप इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो क्या एकदम से आपको फेस होता है, इसका मतलब क्या है. देन यू स्टार्ट क्लिकिंग दीज थिंग्स. So I'm just trying to click those things at this particular moment itself. Okay. So substantial period of time it is talking about. So इसके लिए index कुछ नहीं बोलता है. Index 23 does not define substantial period of time. Management exercises judgment. Okay, here comes your judgment when determining whether assets are qualifying assets, taking into account among other factors the nature of the asset. An asset that normally takes more than a year to be ready for use will usually be a qualifying asset. ऐसा हम मानते हैं. Okay, usually मानते हैं.
And once management chooses a criteria and types of asset, it applies this consistently to those type of assets. ठीक है. Okay, now can intangible asset be a qualifying asset? Yes, इसके लिए कुछ बात नहीं करेगी, जैसे कि मैंने बोला यूज के लिए या फिर सेल के लिए. ओके, दो टर्म्स की बात करी थी इंडेक्स 23 ने, यूज कर लो या फिर क्या कर लो, सेल कर लो. तो यूज में सब कुछ आता है, दैट इज पीपीई प्लस इंटेंजिबल्स भी आ जाएंगे, तो दोनों की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इंटेंजिबल्स हाँ हो सकते हैं अगर उनको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है डेवलप करने में. फॉर एग्जाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, इजीएस्ट एग्जाम्पल इजंट इट. तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो उसको डेवलप करते टाइम आप कुछ ना कुछ तो खर्चे करोगे ना, डेवलपिंग की कॉस्ट वगैरह का खर्चा करोगे, तो उसकी बात हो रही है. ओके, सो लेट्स गेट बैक, वी वर ऑन दिस पोर्शन. ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट हो सकता है क्या, पॉसिबल. ओके, और ओके ना, व्हाट इज अ क्वालिफाइंग एसेट. ठीक है, तो क्वालिफाइंग एसेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. नाउ व्हाट इट सेज, मैनेजमेंट का कंटेंशन इम्पोर्टेंट है क्या कि क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं है. ओके, तो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, अगर कोई सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट हो गया क्या. तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको इधर देखना पड़ेगा. ठीक है, अब क्वालिफाइंग एसेट की अगर अपन बात करें, सो व्हाट इज अ क्वालिफाइंग एसेट के लिए आप पहले थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, स्कोप में भी बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो क्या बोलता है, an entity is not required to apply this standard to borrowing costs directly attributable to acquisition or construction or production of these things. तो entity is not required. Okay, it's not required. Not required का मतलब ये है कि mandatory नहीं है कि वो लगाए, लगा सकती है क्या, हाँ हाँ लगा सकती है, बट मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, क्यों बोला इसने, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है वो इंटेंडेड यूज या सेल, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग एसेट. क्वालिफाइंग एसेट है तो भाई उसके ऊपर बोरिंग पर जो भी लग रही हो कैपिटलाइज होनी चाहिए. लेकिन क्वालिफाइंग एसेट क्या नहीं है, मतलब उसको हम जरूरी नहीं कि आपको क्वालिफाइंग एसेट हो गया तो आप उसके ऊपर लगाओ ही. तो क्या है, क्वालिफाइंग एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू. अब जो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है उसमें आप और क्या ऐड कर दोगे, उसकी तो फेयर वैल्यू यही है, उससे ज़्यादा तो उसकी वैल्यू ही नहीं हो सकती, तो आप उसमें कोई एडिशन नहीं करोगे. नंबर वन एग्जाम्पल. नंबर टू, inventories that are manufactured or otherwise produced in large quantities on a repetitive basis. Inventories जो कि produced होती हैं in large quantities on repetitive basis. Now इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसमें bridges आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि bridges large quantities में repetitive basis पे नहीं बनते. दो इट इज एन इन्वेंट्री फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, बट ये लार्ज क्वांटिटीज में रिपीटेटिव बेसिस पे नहीं बनते, तो इसमें बनता क्या है, वाइन. Okay, wine. So now this person is talking about, can borrowing cost incurred to finance the production of inventories that have a long production period. Inventories जिनका क्या है, long production period है, like wine या cheese, be capitalized. क्या इसके ऊपर capitalization होना चाहिए, कर सकते हो. इंडेक्स 23 तो डायरेक्टली रिक्वायर नहीं करता, मतलब डज नॉट रिक्वायर का मतलब क्या बोल रहे हैं, कंपल्सरी नहीं है. The capitalization of the borrowing cost of inventories that are manufactured in large quantities on a repetitive basis, जैसे भी मैंने आपको स्कोप में पढ़ाया. Okay, interest capitalization is however permitted, okay, as long as the production cycle takes a substantial period of time, as with wine or cheese. तो अगर आपको substantial period of time लगता है और आप चाहते हो तो आप कर सकते हो. It is just a accounting policy choice. That is again what comes, judgment. मतलब आपको स्पेसिफिकली अगर इंडेक्स 23 के क्वेश्चंस पढ़ के समझ आया होगा तो पता चला होगा इंडेक्स 23 में कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए, आपको जजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट का जजमेंट. मैनेजमेंट का जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, बस वहीं पे क्या आती है, प्रैक्टिकलिटी. जहाँ पे क्लियर कट इंडेक्स में लिखा होता है ये करना है तो उसमें कोई डाउट ही नहीं होता ना. प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे जजमेंट अप्लाई करने होता है. तो इसलिए मैंने आपको इन क्वेश्चंस पढ़ाए ताकि आपको समझ आ सके इस इंडेक्स की डेप्थ क्या है. ओके, तो इसमें किस लेवल तक जजमेंट इन्वॉल्व होता है. Okay, so let's move ahead in this standard. Now this standard talks about definitions बोल दिया इसने. Now what is a borrowing cost? Borrowing cost में include an interest expense using EIR method as per index 109. ये 109 है. Okay. एंड 109 में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है फिर मान लीजिए. ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ माई इंटरेस्ट रेट.
नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो होती है वो तो इंटरेस्ट में होती है, उसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर लग रही है तो वो भी क्या फॉर्म हो जाएगी, मेरी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का पार्ट हो जाता है। तो अब आप क्या बोलोगे कि इंडेक्स के आने से आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उसके अंदर कैपिटलाइज करने को क्या मिलेगी, एक एसेट में कैपिटलाइज करने को मिलेगी। ठीक है। Now, then second thing it talks about is the finance charges in respect of finance lease. ठीक है, recorded recognized in accordance with leases. तो leases में जो finance charges के नाम पे आप डालते हो वो भी आप capitalize कर सकते हो. And exchange differences. Now this is very important point. Exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they have that they are regarded as an adjustment to the interest cost. To the extent आप उनको interest cost में adjust कर सकते हो तब तक आप उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हो. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ दिस इंडेक्स. ओके, इसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है और लॉजिकली समझेंगे हम इसे, और इसी का थोड़ा सा इशू भी रहता है. Okay, so with regard to exchange differences required to be treated as borrowing costs in accordance with paragraph 60, the manner of arriving at the adjustment stated therein, इसके ऊपर हम लोग आएंगे. ओके ना, क्वालिफाइंग एसेट की हम लोग बात कर रहे थे, तो और बता दिया आपको. इन्वेंट्री हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, पावर जनरेशन फैसिलिटी हो सकती है, इनटैंजिबल एसेट भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है. ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी एक पीपी, पहले पीपी का पार्ट होती थी, अब उसको अलग करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दी. डेफिनेटली हो ही सकता है. Financial assets and inventories that are manufactured or otherwise produced over a short period of time are not qualifying asset. Assets that are ready for the intended use or sale when acquired are not qualifying asset. तो वो हमें वैसे भी समझ आ रहा था, बट इन्होंने स्पेसिफिकली भी लिख दिया कि भाई जो ऑलरेडी रेडी फॉर यूज है तो उसको खरीदने के लिए अगर आपने कोई खर्च लोन लिया है उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बनाने के लिए जब जो लोन ले रहे हो आप उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो. This is the simplest way it is talking about. Then recognition, an entity shall capitalize borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset as part of the cost of that asset. An entity shall recognize other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them. Okay, so an entity shall capitalize borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset as a part of the cost of the asset. An entity shall recognize other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them. Okay. अब कुछ रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज वगैरह की इन्होंने बात करी है. Commencement of capitalization is one point. Suspension of capitalization is another point, and cessation of capitalization is one. Now, commencement मतलब कब से हम कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हैं. सस्पेंशन मतलब होता है थोड़े से टाइम के लिए रोकना. सस्पेंड कर देते हैं ना, जैसे स्कूल में सस्पेंड कर दिया. ओके, तो सस्पेंड करना मतलब कुछ टाइम के लिए आप स्कूल नहीं आओगे, मतलब कुछ टाइम के लिए इंटरेस्ट कॉस्ट क्या नहीं होंगी, कैपिटलाइज नहीं होंगी, राइट. सो दैट इज सस्पेंशन. ऐसा भी कोई पीरियड हो सकता है जिस पीरियड में वो इंटरेस्ट कॉस्ट तो लग रही है मेरी, बट वो कैपिटलाइज नहीं होंगी. ठीक है. और सिसेशन मीन्स बस खत्म. ठीक है, अब फिनिश हो गया, तो अब मतलब आप कर ही नहीं सकते, भले इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही हो आपकी, बट आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते. तो ये तीन मेजर पोर्शन है जिसमें रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की बात होती है. ओके, तो योर कमेंसमेंट, देन इट्स सस्पेंशन, देन इट्स सेसेशन. एंड देन हम जनरल पूछेंगे तो फिर छोटे मोटे डिस्क्लोजर्स हैं जिसमें वही वेटेड एवरेज रेट, कितनी आपने कैपिटलाइज करी, ये सब आपको क्या करता होता है, बताना होता है. सो आई होप यू कैन सी दिस इंडेक्स इज टू स्मॉल, राइट. नियरली 11 पेजेस में ये क्या हो रहा है, मेरा कवर हो रहा है, जिसमें भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, तो टू स्मॉल, राइट. तो अपन बात करते हैं एक बार. ओके, so let's move ahead. हम लोग 6E जो पैराग्राफ है उसकी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. आज हम थोड़ा सा रिकॉग्निशन वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. An entity shall capitalize borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset as part of the cost of that asset. An entity shall recognize other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them. Means, an entity shall capitalize the borrowing costs that are directly attributable
to the acquisition, construction या production of a qualifying asset as a part of the cost of the asset. तो आप क्या क्या चीजें कैपिटलाइज कर सकते हो? ओके, सो 3 पोजिशंस में आप इसको देखोगे. कैसे देखोगे? जो आपने उसके एक्विजिशन से रिलेटेड है, या फिर वो उसकी किससे रिलेटेड है? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, या फिर वो किससे रिलेटेड है? उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है. अब ये टर्म्स क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, बट ये अलग अलग चीज़ों में यूज़ होगी. कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे आप कोई ब्रिजेस वगैरह बना रहे हो. प्रोडक्शन मतलब जो आप इन्वेंट्री वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हो. एक्विजिशन मतलब कोई एसेट के पार्ट्स वगैरह आप लेके आए हो और फिर उसके अंदर क्या कर रहे हो? आप ऐसे बना रहे हो. तो ये 3 तरीके से बात हो जाती है. As a part of the cost of the asset, an entity shall recognize other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs in. So, ये क्या बोल रहे हैं? So now what it is saying that an entity shall recognize other borrowing cost as an expense in the period in which it incurs them. So an entity shall capitalize उन्हीं cost को. An entity shall recognize other borrowing cost, मतलब इसके अलावा कुछ भी और borrowing cost की हो रही है तो आप किस में डालोगे? एक्सपेंस में डाल दोगे उसी पीरियड में जिसमें आप उसे इनकर कर रहे हो. ओके. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset are included in the cost of that asset. Such borrowing costs are capitalized as a part of the cost of the asset when it is probable that they will result in future economic benefits to the entity and the cost can be measured reliably. अब कोई भी एडिशन अगर आप किसी एसेट में करते हो तो आप एडिशन किस बेसिस पे करते हो? कि भाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे. कोई भी पोर्शन ऑफ अ पीपीई आप बेसिकली अगर आपको याद हो तो हम कब कैपिटलाइज करते हैं? जब हमें लगता है उसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, मतलब उसकी खुद की लाइफ 1-2 साल से ज्यादा है, राइट, 1 साल से ज्यादा है उसकी लाइफ, तभी तो जाके हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की बात कर रहे हैं. जब वो खुद एसेट ही 1 साल में डंप होने वाला है तो उसकी कैपिटलाइजेशन की हम बात कैसे कर सकते हैं? गेटिंग मी? मतलब वो एसेट कम से कम 1 साल से ज्यादा तो यूज होना चाहिए ताकि उसके हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, अगर हम कैपिटलाइज नहीं करते तो हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट को पीएनएल में डाल देते हैं. चलो हम कैपिटलाइज कर देंगे तो होगा क्या? डेफरमेंट ऑफ एक्सपेंस होगा. वो एसेट क्या होगा? अमोर्टाइज तो होगा ही ना, लेकिन क्या हो जाएगा इससे? डेफरमेंट ऑफ एक्सपेंस हो गया मेरा. अगर वो 10 लाख का इंटरेस्ट का खर्चा है तो वो मेरे 10 साल की लाइफ ऑफ द एसेट मतलब 1-1 लाख रुपए मेरे पीएनएल को हिट करेगा. मेरा इबिटा चेंज हो जाता है, इबिटा तो नहीं सॉरी, मेरा प्रॉफिट चेंज हो जाता है, राइट. इट इम्पैक्ट्स, इट हिट्स माय पीएनएल फेस, राइट, इजंट इट? तो कैपिटलाइजेशन अलाउड होना चाहिए नहीं. इसलिए हम लोग ये पूरी बात केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा प्रॉफिट अच्छा दिखे. हम एक खर्चे के डेफरमेंट का तरीका सोच रहे हैं यहाँ पे. ओवरऑल जनरल व्यू मिल रहा है आपको क्या कर रहे हैं? इसमें हम एक डेफरमेंट कर रहे हैं खर्चे का इंडेक्स 23 के थ्रू. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कैपिटलाइज करो भी तो एसेट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कोई भी एसेट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जिसको हम कैपिटलाइज करते हैं? कि भाई उससे आपको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, तभी जाके तो कैपिटलाइज करोगे. तो ये है उसकी बात. नाउ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन. क्या क्या बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है? बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल and that would be avoided if the expenditure on the qualifying asset has not been made. मतलब सीधा सीधा अगर आप उसको अवॉइड कर सकते थे तो बिल्कुल आप उसको क्या कर सकते हो कि भाई वो मेरा क्या हो जाता? अवॉइड हो जाता. तो इसलिए मैं उसकी बात कर रही हूँ. ठीक है, अगर वो अवॉइड हो सकता था अगर मैं एसेट नहीं बनाती, इसलिए मैं इसकी बात कर रही हूँ. मतलब ये क्या हो गया? स्पेसिफिक टू दैट एसेट हो गया ना अपने आप. ठीक है. When an entity borrows funds specifically for the purpose of obtaining a particular qualifying asset, the borrowing costs that directly relate to that qualifying asset can be readily identified. It may be difficult to identify a direct relationship between particular borrowings and qualifying asset and to determine the borrowings that could otherwise have been avoided. Such a difficulty occurs, for example, when the financing activity of an entity is coordinated centrally. Difficulties also arise when a group uses a range of debt instruments to borrow funds at varying rates of interest and lends those funds on various bases or to other entities in the group. Other complications arise through the use of loans denominated in or linked to the foreign currencies when the group operates in high inflation economies and from other fluctuations. तो कुछ और हाई इन्फ्लेशनरी जो हमारी रहती है वहाँ की इन्होंने कुछ बात करी है. Now, to the extent that an entity borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset,
entity shall determine the amount of borrowing cost eligible for capitalization as the actual borrowing cost incurred on that borrowings during the period less any investment income on that temporary investment of those borrowings. तो मतलब आप क्या कैपिटलाइज करोगे? अगर आपको कुछ उसके फर्दर इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है तो क्या आप वो कैपिटलाइज कर सकते हो? नहीं, वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रिड्यूस करके नेट अमाउंट को आप कैपिटलाइज करने की बात करोगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने ऑलरेडी बोल्ड कर रखा है। तो अगर कोई भी इनकम आपको जनरेट होती है उसको फर्दर इन्वेस्ट करने से, ठीक है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज बोरिंग्स, मतलब मान लो अपने बैंक ने आपको फंड्स दिए, ठीक है, तो 20 करोड़ के फंड्स दे दिए, तो आप क्या करोगे? मान लो आपके पास काम कितने आ पा रहे हैं? अभी 15 करोड़ आ पा रहे हैं, मैंने 5 करोड़ नहीं पड़े, तो 5 करोड़ खाली पड़े थे, तो मैंने अपने बैंक अकाउंट में उसको क्या कर दिया? एफडी में डाल दिया थोड़े दिन के लिए। तो एफडी से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ मिला के उसके ऊपर 10 लाख रुपए मिल गए खर्चा में, तो 10 लाख रुपए की इनकम हो गई मुझे। तो क्या मैं उसे कैपिटलाइज कर सकती हूँ? बिल्कुल, आपको उस इनकम को भी कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट, आप नेट एक्सपेंस क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे। ऑब्वियसली इनकम कम ही होगी ना, तो नेट एक्सपेंस कैपिटलाइज करोगे। Financing arrangements of a qualifying asset may result in an entity obtaining borrowed funds and incurring associated borrowing costs before some or all of the funds are used for expenditures of the qualifying asset. In such circumstances, the funds are often temporarily invested, pending their expenditure on the qualifying asset. In determining the amount of borrowing costs eligible for capitalization during a period, any investment income earned on such funds is deducted from the borrowing cost incurred. Right? तो कोई भी arrangement हो, कोई भी इनकम अगर आपको हो रही हो तो आप उसको क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे। Now, to the extent that an entity borrows funds generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity shall determine the amount of the borrowing cost eligible for capitalization by applying a capitalization rate to the expenditures of that asset. To the extent the entity borrows funds generally and uses them for the purpose of obtaining qualifying asset, the entity shall determine the capitalization rate. मतलब specific funds नहीं है आपके पास, क्या है? जनरल फंड। तो स्पेसिफिक तो कैपिटलाइज होते हैं। अगर मैंने कोई इस एसेट के लिए लिया तो कैपिटलाइज होता है। जनरल भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। उनकी वेटेड एवरेज रेट ले लो, वेटेड एवरेज पीरियड समझ आ जाएगा, उतने पीरियड के लिए आप उसमें कैपिटलाइज कर सकते हो। कैपिटलाइजेशन रेट निकलती है, जो वेटेड एवरेज रेट निकलती है ना, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट of the expenditure on that asset. The capital rate shall be the weighted average of the borrowing cost applicable to the borrowings of the entity that are outstanding during the period. जो outstanding है during the period, other than the borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. The amount of borrowing cost that an entity capitalizes during a period shall not exceed the amount of borrowing cost it incurred during the period. तो obvious बात है, जितना मेरा खर्चा नहीं हो उससे ज़्यादा आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। बहुत नॉर्मल सी बात है। तो बस ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि फिर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है, लोग कुछ भी कर देते हैं। तो कुछ भी ना हो इसलिए से लिखना प्रेफर करता है, दो इट साउंड्स सिली एट टाइम्स। In some circumstances, it is appropriate to include all borrowings of the parent and subsidiaries in computing a weighted average rate for the borrowing cost. In other circumstances, it is appropriate for each subsidiary to use a weighted average rate of the borrowings applicable to its own borrowings. कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट प्लस सब्सिडरी सबकी बोरिंग्स रेट यूज करके आप निकालो। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्सिडरी अपनी अपनी रेट निकाल के क्या कर ले, उसको एडलेस कर ले। ये कब होगा? मान लो पेरेंट एक चीज बना रहे हैं, ठीक है, वो पेरेंट जो बना रहे हैं वो सबके फंड्स यूज करके बनाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने अगर कंपनी से काम करना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा इंटर यूनिट बोरिंग्स भी होती है। ठीक है, तो उनकी जो रेट होती है वो रेट ले लो। ये मान लो उसके ऊपर रेट है ही नहीं, इंटर यूनिट मैंने अगर बोरो करने को दे दी बट उसके ऊपर कोई रेट नहीं लगा रही, इंटर यूनिट चार्ज ही नहीं कर रही, लेकिन उस इंसान की तो लग रही होगी उस यूनिट के। तो नेट में तो हमारी लगी रही है अगर हम पूरे ग्रुप को एक साथ देखें। तो उस एसेट को बनाने के लिए मैंने उसकी बोरिंग्स यूज करी जो कि पीएनएल में जा रही है। क्या मैं उसको भी कैपिटलाइज कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ। तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा एक्चुअली कि किस हद तक आप बोरिंग्स को यूज कर रहे हो, और जिस हद तक यूज कर रहे हो उस हिसाब से आप उसकी वेटेड एवरेज रेट लेकर कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना रहता है। और ऑब्वियसली आप इतना कैपिटलाइज मत कर देना कि जब रिकवरेबल अमाउंट निकालने बैठो तो वो क्या है, कम आए और आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर कैपिटलाइज करने के बाद वैल्यू बढ़ जाती है तो रिकवरेबल अमाउंट विल बी दी अमाउंट दैट विल बी शोन इन दी, दैट विल बी शोन अंडर एसेट। उससे ज़्यादा आप शो नहीं कर सकते एनीवेज।
ठीक है, वो तो पहले ही बोला था कि जो एसेट फेयर वैल्यू पे है उसके अंदर और क्या ऐड कर सकते हो आप। तो जो एसेट अपनी रिकवरेबल वैल्यू को एक्सीड कर जाए उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज करने से, तो ऐसा एक्सपेंस आपको कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते आप उसको कम कर दो, आप उसे पीएनएल में चार्ज करो, क्योंकि एनीवेज वो इम्पेयरमेंट लॉस की तरह पीएनएल में चला जाएगा, राइट। एनीवेज वो इम्पेयरमेंट लॉस की तरह पीएनएल में चला ही जाएगा। तो वही इधर बात करिए। In next class, we'll talk about these topics: commencement, suspension, cessation, and finally the important one, जो exchange gain और loss है, वो हम किस extent तक interest का part बना के क्या कर सकते हैं, capitalize कर सकते हैं। ठीक है, so that's all for today. Thank you.